وہ ٹرین جسے کل BLA کے دہشت گردوں نے یرغمال بنایا تھا، وہاں سے بازیاب ہونے والے شہریوں نے کیا داستان سنائی، کیا کہا کس طرح یرغمال بنایا گیا اور کتنے لوگ ابھی بھی ان کی تحویل میں ہیں، اور کس طرح یہ جو لوگ بازیاب ہوئے ہیں ان کو کس طرح چھوڑا گیا، یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ حکومت کا، سیکورٹی فورسز کا کیا کردار ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، اور پھر محسن نقوی کو کس طرح ان لوگوں نے مخاطب کیا۔ محسن نقوی کیونکہ یہ کہتے تھے کہ یہ تمام دہشت گردی اور بلوچستان کے تمام حالات ایک SHO کی مار ہیں، اور ابھی وہ SHO پتہ نہیں کہاں غائب ہو چکا ہے، کہاں گم ہو چکا ہے، وہ SHO پتہ نہیں کہاں کس کھڈ میں چھپ چکا ہے، نہیں پتا۔ محسن نقوی کو بازیاب ہونے والی خواتین نے مخاطب کیا، کیا کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیکورٹی فورسز کیا کہتی ہیں کہ کتنے دہشت گرد مارے جا چکے ہیں، کتنے لوگوں کو بازیاب کروایا گیا ہے، لیکن جو لوگ بازیاب ہوئے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ کرتے ہیں آج کا ولاگ شروع۔ پہلے آپ کو بتاتے ہیں جو ملکی حالات ہیں، آپ دعا کریں کہ یہ ملکی حالات بہتر ہوں اور ان تمام لوگوں کو کوئی عقل آئے، ان تمام لوگوں کو عقل آئے کہ ہم نے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے، ہم نے اس پاکستان کی عوام کے لیے کام کرنا ہے۔ جعفر ایکسپریس جو کل کوئٹہ سے پشاور جا رہی تھی، جعفر ایکسپریس اسے سبی کے مقام پہ ٹنل نمبر 8 کے قریب اسے یرغمال بنایا گیا، اسے روکا گیا، فائرنگ کی گئی، اور پھر وہاں جو لوگ تھے انہیں یرغمال بنا لیا گیا۔ لیکن ہوتا ہے کیا، یہ ایک عین شاہد ہیں، اسی ٹرین میں موجود تھے یہ شہری، یہ کہتے ہیں کہ دھماکے اور فائرنگ کے بعد ہر طرف چیخو پکار شروع ہو گئی، یعنی جو BLA کے دہشت گرد تھے انہوں نے پہلے دھماکہ کیا، اس کے بعد فائرنگ کی۔ وہ کہتے ہیں کہ دھماکے کے بعد اور فائرنگ کے بعد ہر طرف چیخو پکار شروع ہو گئی، ہم نیچے لیٹ گئے، پھر انہوں نے ہمیں ٹرین سے نیچے اتارا، میرے ساتھ میری بیوی اور بچے موجود تھے، تو انہوں نے مجھے اور میری فیملی کو چھوڑ دیا اور کہا کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ انہوں نے کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور تم نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، اور اگر پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہم تمہیں شوٹ کر دیں گے، ہم تمہیں فائر مار دیں گے۔ اس کے بعد تھوڑی صورتحال بتائیے کیا دیکھا؟ بس اس کے بعد چیخو پکار تھی، سب لوگ چیخ رہے تھے، گاڑی مار رہے تھے، بس کچھ لیٹ گئے، ہم بھی لیٹ گئے پوری ٹرین میں۔ ہم لوگ اترے گئے، میرے بچوں کو بھی چھوڑ دیا، مجھے بھی چھوڑ دیا، میری گھر والی کو بھی چھوڑ دیا۔ اس نے کہا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا چاہیے، ہم لوگ بچے پولیس اسٹیشن پہنچ گئے پیدل پہ، نالے کے بیچ میں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں سے بھاگ کر آگے اور باقی لوگوں کو انہوں نے یرغمال بنا لیا۔ اب یہ دہشت گرد جو ہیں، انہوں نے مطلب جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، کیونکہ جو لوگ بازیاب ہوئے ہیں، جو لوگ سامنے آئے ہیں، ان کے مطابق جو چھوٹے بچے تھے، جو خواتین تھیں، اور کچھ لوگوں کو انہوں نے چھوڑ دیا اور کہا کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، آپ یہاں سے بھاگ جائیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو انہوں نے بندی بنا لیا، کچھ لوگوں کو انہوں نے پکڑ لیا۔ یہ واقعہ ہے، دیکھیں ایک طرف اب میں آپ کو تضاد بتانے لگا ہوں۔ ایک طرف یہ وہ لوگ ہیں، اور آپ یہ ویڈیو سٹیٹمنٹ سن سکتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو وہاں سے اس ٹرین سے واپس آئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جو دہشت گرد تھے یا جو BLA کی تنظیم تھی، انہوں نے کیا یہ کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے جو خواتین تھے، بچے تھے، ان کو چھوڑ دیا اور کہا کہ آپ چلے جائیں اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ لیکن سیکورٹی فورسز کیا کہتی ہیں، حکومت کیا کہتی ہے، یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایک اور ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اس میں یہ جعفر ایکسپریس کی یہ اپڈیٹ ہے کہ ایک اور خاتون جو وہاں سے بازیاب ہو کر آئی، جو وہاں سے صحیح سلامت الحمدللہ واپس لوٹی، وہ کہتی ہے کہ وہ جو کہتا تھا کہ ایک SHO کی مار ہے اسے بلائیں۔ مطلب اس نے محسن نقوی کو مخاطب کیا، اور صرف میں نہیں، صرف یہ خاتون نہیں، بلکہ پوری پاکستان کی قوم اس نقوی کو مخاطب کر رہی ہے، کیونکہ اس نے برقیں تو بہت ماری تھی، اور یہ اتنے نکھٹو نالائق ہیں کہ ان کو نہیں پتا کہ حالات کیسے ہیں، اور پھر برقیں اتنی بڑی مار دیتے ہیں کہ ایک SHO کی مار ہے۔ اب پتہ نہیں وہ SHO کہاں غائب ہو چکا ہے، کہاں گم چکا ہے، کہاں کس کھڈ میں چھپ چکا ہے، نہیں پتا۔ خاتون کہتی ہے کہ کہاں ہے وہ جو کہتا تھا کہ ایک SHO کی مار ہے، اس کو بلائیں اور اس کو کہیں کہ بغیر پروٹوکول کے آپ بلوچستان جائیں، بغیر پروٹوکول کے ان ایریاز میں جائے، پھر اس کو پتا چلے کہ یہ کون سے SHO کی مار ہے۔ SHO کی مار کو لائیں ادھر، بولو آ کے نا بغیر پروٹوکول کے جا کے دکھائے SHO کی مار کو، خود اسلام آباد میں بڑے مزے سے بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کے سامنے ایک اور جو انسان ہے اس کی میں داستان سامنے رکھتا ہوں۔ اچھا وہاں سے آپ کو کیسے، مطلب وہاں سے یہاں تک کیسے آپ آئے، کس طرح آئے وہاں سے؟
उधर हम लोग को छोड़ दिया, फिर बोला आप लोग जाएं भाई, अपना रास्ता पकड़े, निकलते जाए, आप लोग के साथ दुश्मनी नहीं है। हम लोग पैदल निकलते निकलते इधर नीचे नहर में गिर गए, नहर में डाला तो बस निकलते गए, पानी पत्थर पानी। सर वहाँ से जब आप बल्ली पहुँचे, वहाँ पे एफसी वालों ने आपकी कितनी खिदमत की, किस तरह लेके आए? वहाँ पर हम लोग की खिदमत तो ऐसी कोई नहीं की। अब ये मीडिया पर बता रहा है कि उन्होंने हमें कहा कि आप वापस चले जाएं और उन्होंने हमें खुद भेजा। लेकिन मैं आपको जो तजाद बताने लगा था, आपको जो डिफरेंस बताने लगा था, वो ये है कि एक तरफ ये कहते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहाँ कार्रवाई की, 104 जो अभी तक खबरें हैं, ये कहते हैं कि 104 मुसाफिरों को बाजियाब करवा लिया गया, जिनमें से 58 मर्द, 31 खवातीन और 5 बच्चे शामिल हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि बाजियाब करवा लिया गया, लेकिन जो मुसाफिर हैं वो कहते हैं कि उन्होंने हमें खुद छोड़ा, उन्होंने हमें खुद कहा कि आप चले जाएं। और फिर सिक्योरिटी फोर्सेस और ये हुकूमती तर्जमान कहते हैं कि बाजियाब करवा लिया गया। किस तरह बाजियाब करवाया गया, कैसे बाजियाब करवाया आपने, किस तरह कार्रवाई की है, और क्या आपके पास नेटवर्क था, किस तरह आपने जाकर उनको बाजियाब करवाया, ये चीज़ें भी सामने रखें। क्योंकि मुसाफिर तो कहते कुछ और कहते नज़र आ रहे हैं। वो तो ये कहते हैं कि उन्होंने हमें खुद छोड़ा, उन्होंने खुद हमें कहा कि आपने पीछे मुड़ कर नहीं देखना, आप चले जाएं, और कुछ लोगों को बंदी बना लिया, कुछ लोगों को पकड़ लिया। और इसके अलावा जो तर्जमान है वो कहते हैं कि 16 दहशतगर्द जो हैं वो जहन्नम में वासिल हो चुके हैं और 17 जख्मियों को हस्पताल मुंतकिल किया गया है। ये बात कह रहे हैं, वो कहते हैं कि दहशतगर्द सैटेलाइट फ़ोन के ज़रिए बैरून मुल्क हैंडलर से राब्ते में थे। मतलब वो कहते हैं कि जो सैटेलाइट फ़ोन है उसके ज़रिए वो राब्ते में थे, और सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के गिर्द मज़ीद घेरा तंग करने का कह दिया है। अब इस पे आमर मुगल ने भी तजिया दिया है, जो तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा है, और ये हकीकत में मबनी बातें हैं। आमर मुगल ने जो बात की है वो बिल्कुल ठीक ही है। आमर मुगल कहते हैं कि ये कह रहे हैं कि बाजियाब करवाया गया, और फिर मखदूम शाहबुद्दीन को उन्होंने जवाब दिया है। वो कहते हैं कि ये जो आपने ट्वीट किया है बाजियाब करवाया गया, जो लोग आए हैं वो तो कुछ और कहते हुए नज़र आ रहे हैं। ये तमाम चीज़ें हैं जो आपके सामने हैं, लेकिन अभी इतलात ये हैं कि कुछ लोग अभी भी उनकी बंदी में हैं, और वो जो लोग हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हो सकते हैं। वो जो लोग हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हो सकते हैं, और जिन लोगों को छोड़ा गया वो एक आम सिविलियन लोग थे, जो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग थे, उन लोगों को छोड़ दिया गया। बाकी मज़ीद हक़ाइक़ आहिस्ता आहिस्ता सामने आते जाएंगे, आपके सामने रखेंगे। लेकिन बात ये नहीं है कि बाजियाब करवाया गया या फिर वो उनको खुद छोड़ा गया। बात ये है कि बलूचिस्तान, जिसका वज़ीर आला ये कहते हुए नज़र आता था कि बलूचिस्तान में अमन है, कोई भी आसानी से जा सकता है, कोई भी कहीं जा सकता है। जब उमर अयूब खान ने बात की, जब उमर अयूब खान ने ये कहा कि वहाँ कुछ जो बलूचिस्तान के इलाके हैं वो इस टाइम पाकिस्तान की फोर्सेस के कंट्रोल में नहीं हैं, वो वहाँ की जो तंजीमें हैं BLA बलोच लिबरेशन आर्मी जो है उनके कंट्रोल में हैं। तो फिर बलूचिस्तान के वज़ीर आला ने कहा कि आप आए मेरे साथ विज़िट करें। तो बलूचिस्तान के वज़ीर आला को कहूँगा कि आप बगैर प्रोटोकॉल के आप भी ज़रा विज़िट करें सरफराज बुगटी साहब, आपको भी पता चले कि क्या हालात हैं। आप देखें, इस मुल्क में हमेशा नवाजा जाता है, इस मुल्क में किस तरह नवाजा जाता है आप ये देखें। और ये वही लोग हैं जो बरके मारते हैं। मोहसिन नकवी पंजाब के वज़ीर आला बने, ठीक है, जब आपको पता है हुकूमत ख़त्म हुई तो उन्हें निगरान वज़ीर आला बनाया गया पंजाब का। उसके बाद इन्हें स्पेशल तरीके से सेनेट के ज़रिए इन्हें लाया गया और इन्हें वज़ीर दाखिला बना दिया गया। अब जो सरफराज भुगटी हैं वो वज़ीर दाखिला बने थे और अब उनको वज़ीर आला बनाया गया है। ये कुछ खास लोग हैं जिन पे एक करम का हाथ रखा जाता है, क्योंकि ये वही बात करते हैं जो हुक्म आता है। और अब मोहसिन नकवी ने जो इतनी बड़ी बातें की थी, अब वहाँ मौजूद खवातीन मोहसिन नकवी को कह रही हैं कि आए ज़रा प्रोटोकॉल के बगैर आके चेक करें। अब मैं आपको इस पे बताता हूँ कि इमरान खान ने इस पे क्या तज़किया दिया है, इमरान खान ने इस पे क्या बात की है, ये आपके सामने रखते हैं। लेकिन यहाँ सोचने की बात यह है, आप अभी भी जाके नून लीगियों के एक्स अकाउंट उठा के देख लें, वो अभी भी इसी चीज़ पे हैं कि तहरीक इंसाफ के बंदे ने ये कह दिया, तहरीक इंसाफ ने ये कह दिया, तहरीक इंसाफ ने इस पर ववेला मचाया, तहरीक इंसाफ ने इस पर एक साजिश की। लेकिन हक़ाइक़ कुछ और है, सच कुछ और है। अब सच मैं आपके सामने रखता हूँ। सच ये है कि जब खैबर पख्तूनख्वा में कोई दहशतगर्दी होती है तो ये कहा जाता है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का फेलियर है,
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत नाकाम हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत यानी तहरीक इंसाफ में मलबा डाल दिया जाता है और ये कहा जाता है कि इमरान खान इन दहशत गर्दों को, इन तालिबानों को लेकर आया। आपको याद होगा मरियम नवाज ने एक स्टेटमेंट दी थी जब ज़मान पाक में तहरीक इंसाफ के लोग मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान वहाँ से दहशत गर्दों को यहाँ लेकर आया है। तो फिर इनकी इतनी जुर्रत नहीं जाके वहाँ दिखाते कौन से दहशत गर्द लेकर आया है। और आज अगर खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी होती है तो यही बात करते हैं कि वहाँ ये दहशत गर्दी इमरान खान लेकर आया है, तहरीक इंसाफ लेकर आई है। लेकिन अगर बलूचिस्तान में दहशत गर्दी होती है तो फिर BLA कर रही है, तब हुकूमत को क्यों इल्ज़ाम दिया जाता? ये इन तमाम हुकूमती अदारों को, इन तमाम हुकूमत को और अदारों को ये चाहिए कि आप एक पार्टी पे इल्ज़ाम लगाने की बजाय आप एक होकर काम करें, इस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए काम करें, ना कि तहरीक इंसाफ के लोगों को दहशतगर्द डिक्लेयर करके उनको पकड़ें, उनको गिरफ्तार करें, उनको उठाएं। असल जो दहशतगर्द हैं उनको उठाएं, उनको गायब करें। ये जो मतलब अपनी ताकत का इस्तेमाल यहाँ करते हैं वो वहाँ किया जाए। सो देखिए ये क्योंकि ये डिफरेंस है। अब मैं इमरान खान की बात करता हूँ। जहाँ जो बाहर मौजूद नून लीगी रहनुमा है, किसी ने इस पर बात नहीं की, मतलब सब इस पर गलत ट्वीट कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। भाई आप बताएं, आपकी हुकूमत है, ये तहरीक इंसाफ हो या GDA हो या कोई दूसरी जमात हो, वो आपसे सवाल करेंगे, आपसे पूछेंगे ये क्यों हो रहा है, आपका फेलियर है, आपकी नाकामी है, वो आपसे सवाल करेंगे। आपका काम है जवाब देना। आप फॉर्म 47 से तो आगे हैं, लेकिन अभी भी आपकी सुई, आपका टारगेट तहरीक इंसाफ के लोग हैं। लेकिन इमरान खान जेल में बैठ के क्या कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। इमरान खान जेल में बैठ के कहते हैं कि ये जो दहशत गर्दी है ये कम होनी चाहिए, दहशत गर्दी को रोकना चाहिए, सिक्योरिटी फोर्सेस को अपनी एनर्जी इस दहशत गर्दी को रोकने के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए, खुफिया एजेंसीज को अपनी ताकत इस दहशत गर्दी को रोकने के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए, ना कि तहरीक इंसाफ के लोगों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए, ना कि तहरीक इंसाफ के लोगों को उठाने के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। इमरान खान ने जेल में बैठ के ये कहा है कि अंदरूनी मामलात की तरह इस वक्त पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी भी बदतरीन तरीके से चलाई जा रही है। इसके अलावा वो कहते हैं कि खुफिया अदारों का जो असल काम है वो है अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना, वो है दहशत गर्दी से बचाओ, और वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मसरूफ़ है। वो तहरीक इंसाफ को तोड़ने में लगे हैं, और सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? बलूचिस्तान में दहशत गर्दी बढ़ रही है, वहाँ के मसले का कोई सियासी हल नहीं निकल रहा। बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में दहशत गर्दी बढ़ रही है। अब इमरान खान जेल में बैठ के बात कर रहे हैं इस दहशत गर्दी को कंट्रोल करने के लिए, और जो बाहर बैठे हैं वो सिर्फ अपनी मौज मस्तियों में मसरूफ़ है। ये फ़र्क है इन नाम नहाद लीडरों का और असल लीडर का। बाकी जो भी सूरत हाल होगी आपको अपडेट देते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।